students, welcome back to the channel with the new chapter of class 5th science, chapter number 11, that is about air and water, the very two precious resource for the survival of life on the earth. All right, so we will learn that what is in the air, what are the different layers of our atmosphere, properties of air, then we will learn the water and the purification of drinking water. All right. So first of all, we have to look at the pictures and write whether air or water is used for the following activities. So इन सभी activities को हमें judge करना है and then आपको यहाँ पे लिखना है कि इनके लिए whether air is being used or the water. So in the first picture you can see the football. And football को fill करने के लिए what we need? Air. So we'll write over here air. Secondly, you can see over here that the person is using what? Hot air balloon. और इसके लिए again क्या use होता है? Air. Alright. Then here this girl is watering the plants. ठीक है? And plants को क्या? उसके लिए पानी देने के लिए हमें क्या चाहिए? Water ही चाहिए. Right. Again here the boy is bathing. And इसके लिए भी what we need is water. Here this lady is washing the clothes. And clothes को wash करने के लिए we need water. And here the boy is what? Blowing a balloon. And balloon को blow करने के लिए, inflate करने के लिए we need air. ठीक है? So air and water both are essential for us because all living things अर्थ पे सभी लिविंग बींग्स जो है एयर एंड वाटर पे डिपेंडेंट होते हैं एंड अर्थ पे जो लाइफ पॉसिबल है दैट इज ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर. So first of all, what is in the air? Air है क्या है? Students, air क्या है? It is a mixture of different gases. And on different gases में से nitrogen and oxygen जो है most abundant gases है which are found in our atmosphere. Nitrogen जो है around 78% है हमारे total atmosphere में. उसके बाद second जो abundant है gas that is oxygen around 21%. And जो remaining 1% है उसमें भी जो major gas present है that is argon. Alright? Chalo. Now there are trace amounts of other gases such as methane, hydrogen, helium, neon, xenon, carbon dioxide and a form of oxygen known as ozone. उसके अलावा ये सब भी different gases है जो कि बहुत ही trace amounts में हमारे atmosphere में present है. ठीक है, जैसे कि methane, hydrogen, helium, neon, xenon, carbon dioxide and एक और gas है जो कि oxygen की ही एक form है that is ozone. It is also present in our atmosphere. You can see over here this helium gas. Helium gas को use किया जाता है balloon से fill करने के लिए. Argon gas use होती है electric bulb के अंदर fill करने के लिए. And neon gas को use किया जाता है in these glow signals. ये जो glow signals होते हैं इसमें neon gas का ही use होता है. So now we will learn about oxygen. And oxygen क्या है? Most important gas है for all the living beings. Why? See. During the process of photosynthesis क्या है? Food making process of plant. So इस process के during plants जो है oxygen gas release करते हैं हमारे atmosphere में. ठीक है? When they convert the sunlight into energy. And यही oxygen जो है most important है breathing के लिए and हमें alive रखने के लिए. Also it is essential for burning. किसी भी substance के burning के लिए भी oxygen is required. Second we have nitrogen. So when dead plants और animals, जब आपके dead plants और animals decay सड़ जाते हैं, burn किए जाते हैं, तो नाइट्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है हमारे एटमॉस्फेयर में. और इसके अलावा जब वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं उसके थ्रू भी नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में ऐड हो जाती है. एंड द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, कितनी अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में ऐड हो रही है एंड कितना रिमूव हो रही है, ये अपने आप में परफेक्टली बैलेंस रहते हैं नेचुरली. नाइट्रोजन कीप्स द प्रोसेस ऑफ बर्निंग. नाइट्रोजन जो है बर्निंग प्रोसेस को अंडर कंट्रोल रखता है. सभी लिविंग बींग्स को नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है फॉर देयर ग्रोथ, बट स्टिल दे कैन नॉट यूज इट. वो उसे उसकी नेचुरल फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं. देयर आर सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल. कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया है जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं एंड नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, एंड एनिमल्स को ये नाइट्रोजन फिर कैसे मिलती है? इन्हीं प्लांट्स को खाकर मिलती है जो प्लांट्स इस सॉइल में ग्रो करते हैं.
नेक्स्ट वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है प्लांट्स के लिए बहुत एसेंशियल गैस है। ठीक है, सी एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स क्या होता है स्टूडेंट्स, हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ठीक है, जब हम ब्रीद आउट करते हैं, फिर उसके बाद व्हेन वी बर्न द फॉसिल फ्यूल्स को जब आप बर्न करते हो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में ऐड हो जाती है, और हमारी एयर के अंदर अराउंड 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। बट प्लांट्स इस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं टू मेक देयर ओन फूड। ऑलराइट, इट एब्जॉर्ब द हीट सेंट टू द अर्थ। प्लांट्स जो है उस सन की हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद इसी सभी से मिलकर क्या बनता है, हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर बनता है, विच इज सुटेबल फॉर द लाइफ टू एग्जिस्ट। नेक्स्ट वी हैव ओजोन। ओजोन क्या है, O3। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है जो 3 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बनता है। एंड हमारे एटमॉस्फेयर की जो ओजोन लेयर है वो काफ़ी यूजफुल है इन सेविंग द अर्थ फ्रॉम द अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन। एक्चुअल में सन जो है स्टूडेंट्स कुछ हार्मफुल रेडिएशंस रेडिएट करता है हमारे अर्थ सरफेस पे, दैट इज द यूवी रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, दे आर वेरी हार्मफुल। बट क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में आउटर में एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट है ओजोन की, ये ओजोन जो है एक शील्ड, एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह एक्ट करती है, and they send back those ultraviolet radiations to the space which is radiated by the sun. They do not allow those rays to enter in our earth. कौन, ओजोन लेयर। ऑलराइट, नेक्स्ट यू हैव वाटर वेपर। वाटर वेपर भी एक इंपॉर्टेंट गैस है टू कंसिडर। ठीक है, जब आप एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ रहे हैं तो वाटर वेपर भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एंड अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, एयर में कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है ये वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, हमारे एयर में एक पर्टिकुलर टाइम पे जितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट होगा दैट विल बी कॉल्ड ह्यूमिडिटी। राइट, नाउ लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। सो द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारे अर्थ के सराउंडिंग में एक ब्लैंकेट ऑफ एयर जो प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एंड एटमॉस्फेयर में सेवरल लेयर्स होती हैं, हर एक लेयर में क्या है, एक डिस्टिंक्ट मिक्सचर है गैसेस का। ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर क्या है, फर्स्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, यही वो लेयर है इन ऑन विच वी लिव इन। ठीक है, ये किसकी बनी है, गैसेस की बनी है जिसे आप एवरीडे बेसिस पे ब्रीथ करते हैं। एंड ये कहाँ तक, अबव द अर्थ सरफेस अराउंड 15 किलोमीटर तक एक्सटेंड होती है ट्रोपोस्फेयर। इसी लेयर में स्टूडेंट्स क्या होती है, विंड्स ब्लो करती हैं, क्लाउड्स फॉर्मेशन होता है, वेदर चेंजेस आते हैं। ऑलराइट, यू कैन सी दिस इज अवर अर्थ। और सबसे पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, देन मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एंड देन इज एक्सोस्फेयर। सो सेकंड लेयर वी हैव इज स्ट्रेटोस्फेयर, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर की सेकंड लेयर है, और अप टू 35 किलोमीटर तक लाई करती है, एक्सटेंड करती है, और लाइज अबव द ट्रोपोस्फेयर। द ओजोन लेयर, जो ओजोन लेयर है स्टूडेंट्स, वो हमारे इसी लेयर के स्ट्रेटोस्फेयर के अपर लेयर में प्रेजेंट होते हैं। एंड ये लेयर एसेंशियल है लाइफ सर्वाइवल के लिए, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, क्योंकि इस पे ओजोन प्रेजेंट है, एंड ओजोन लेयर क्या करती है, डज नॉट अलाउ द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन टू एंटर द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। ऑलराइट, थर्ड लेयर वी हैव इज आइनोस्फेयर। सो अबव द स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर मेसोस्फेयर होता है ना, और उसके ऊपर थर्मोस्फेयर होता है। बट मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर को ऑफनली एक साथ, ठीक है, व्हाट दे से कि एज आई टोल्ड यू, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर मेसोस्फेयर और मेसोस्फेयर के ऊपर थर्मोस्फेयर, लेकिन मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर को टुगेदर हम क्या कह सकते हैं, आइनोस्फेयर कह सकते हैं। एंड ये सबसे थिकेस्ट लेयर है, इसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिसकी वजह से रेडियोस वर्क करते हैं। देन वी हैव एक्सोस्फेयर, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर है अबव द आइनोस्फेयर, आइनोस्फेयर से ऊपर, एंड ये सबसे थिन लेयर होती है, इसमें काफी लिटिल एयर प्रेजेंट है। एंड इस लेयर के बाद, इसके बियॉन्ड व्हाट एग्जिस्ट, दैट इज स्पेस। ऑल द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, जितनी भी लेयर्स एटमॉस्फेयर की, वो सभी एक साथ ही होल्डेड है टुगेदर ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी। ठीक है, अर्थ की ग्रेविटी है जो उसके एटमॉस्फेयर को उसके पर्टिकुलर प्लेस पे लोकेटेड रखती है, होल्ड रखती है। द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, सो एयर की प्रॉपर्टीज क्या है, नंबर 1, एयर हैज वेट, एयर में वेट होता है। अब इसके लिए आपने क्या करना है, एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, या आप टू टेक अ बलून, बलून लेना है, आप उसको वे करोगे, फिर उसके बाद आपको उसके अंदर एयर फिल करनी है, एंड देन द बलून विल इन्फ्लेट। उसके बाद उस इन्फ्लेटेड बलून का दोबारा हम वेट मेजर करेंगे,
एंड वी कैन ऑब्जर्व द डिफरेंस। अब आप यहाँ पे वेट में आने वाले डिफरेंस को ऑब्जर्व कर सकते हो। इन्फ्लेटेड बलून के अंदर ज्यादा वेट होता है एज कंपेयर टू डिफ्लेटेड बलून। सो स्टूडेंट्स, जब आपने क्या करा, इन्फ्लेटेड बलून को इन्फ्लेटेड बलून के वेट को डिफ्लेटेड वाले के साथ आप कंपेयर करोगे तो आप इजीली वहाँ पे डिफरेंस को ऑब्जर्व कर सकते हो। एंड व्हाट यू विल सी कि इन्फ्लेटेड बलून का वेट डिफ्लेटेड वाले से ज्यादा है, विच प्रूव्स दैट एयर हैज वेट। सेकेंडली, एज यू कैन सी कि डिफ्लेटेड बलून ने क्या किया स्टूडेंट्स, डिफ्लेटेड बलून जो है स्पेस कम ऑक्यूपाई कर रहा था, बट इन्फ्लेटेड बलून का वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज हो चुका है एंड शोज कि एयर ऑक्यूपाई स्पेस ऑल्सो। देन ऑन पुशिंग एयर इन अ बलून, जब आप बलून में एयर को पुश करते हो तो उसका साइज भी इंक्रीज हो गया। एंड अगर आप उसके बाद और एयर, इफ यू विल पुश मोर एयर इनटू दैट बलून, सो द बलून विल बर्स्ट। व्हाई? बिकॉज बलून जो है क्या करता है, एक सर्टेन लिमिट तक ही एक्सपेंड हो पाएगा, ठीक है। और वो जो बर्स्ट हो गया वो किसकी वजह से, उस प्रेशर की वजह से जो उस बलून के अंदर एयर एक्सर्ट कर रही है। ऑलराइट, सो it bursts because the pressure of air inside the balloon becomes more than outside of the balloon। जो प्रेशर, एयर प्रेशर बलून के बाहर था, उससे ज्यादा प्रेशर जो है बलून के अंदर हो गया एयर की वजह से, है ना। एंड इसकी वजह से वो बलून बर्स्ट हो गया। सो वहां से इस सिचुएशन से हमें क्या प्रूव हुआ कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑल्सो। सो यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज पड़ी एयर की कि एयर हैज वेट, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड एयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑल्सो इन ऑल द डायरेक्शंस। Next we have what uses of air pressure। air pressure के क्या uses है? So students, you might have used straw। आप क्या जूस या कोल्ड ड्रिंक आपने सक करने के लिए यूजुअली स्ट्रॉ का यूज किया होगा। तो जब हम कोल्ड ड्रिंक को सक करते हैं थ्रू द स्ट्रॉ, तो एक्चुअल में उस स्ट्रॉ के अंदर जो एयर होता है ना, प्रेशर, वो सबसे पहले रिमूव होता है। उसके बाद जो लिक्विड है वो उसके प्लेस को ऑक्यूपाई करने के लिए लिक्विड स्ट्रॉ के अंदर जाता है। सो एक्चुअल में इसी तरीके से द एयर प्रेशर इन द बॉटल फोर्सेस, एंड जो बॉटल में एयर प्रेशर है वो कोल्ड ड्रिंक को फोर्स करता है टू राइज अप इन द स्ट्रॉ। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक वाटर। सो लाइक एयर, एयर की तरह वाटर इज आल्सो एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स, है ना। सभी लिविंग बीइंग्स को वाटर भी चाहिए फॉर देयर सर्वाइवल। ह्यूमंस जो है दे रिलाई ऑन वाटर फॉर द डिफरेंट पर्पसेस, जैसे कि ड्रिंकिंग, कुकिंग, बेदिंग एक्सेट्रा। सो नाउ वी हैव व्हाट इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन वाटर। सबसे पहले बात करते हैं वाटर में जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। सो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे 2 टाइप्स की इम्प्योरिटीज होती है जो कि वाटर में प्रेजेंट है। नंबर 1 सॉल्युबल इम्प्योरिटीज एंड द अदर इज इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। तो वो इम्प्योरिटीज जो वाटर में डिसॉल्व हो जाती है, दे आर कॉल्ड सॉल्युबल इम्प्योरिटीज। एंड जो डिसॉल्व सब्सटेंसेस में, दैट लाइक सॉल्ट एंड शुगर, उन्हें क्या बोला जाएगा, सॉल्यूट। सी, दे हैव गिवन योर टेबल ओवर हियर। सो यहाँ पे आपको डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज बताई हैं और उनके इफेक्ट्स बताए। लाइक नंबर 1 कैल्शियम एंड मैग्नीशियम अगर डिसॉल्व है, सो उससे वाटर की हार्डनेस एंड अल्कलिनिटी का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। आयरन अगर डिसॉल्व है तो उससे वाटर का जो टेस्ट है वो काफी खराब हो जाता है, कलर रेडिश हो जाता है। सोडियम की प्रेजेंस से अल्कलिनिटी कॉज होती है एंड मैंगनीज की प्रेजेंस से ब्लैक या ब्राउन वाटर आपको देखने को मिलता है। Now there are substances that do not dissolve in water। ऐसे भी substances हैं जो water में dissolve नहीं होते हैं। And उन substances को, उन impurities को कहा जाता है insoluble और suspended impurities। Like we have microscopic organism। ये एक suspended impurity है जिससे diseases होती हैं, waterborne diseases। And कुछ solids है like chalk and sand, इससे आपको water में murkiness यानी कि opaqueness देखने को मिलेगी। Now removal of insoluble impurities। insoluble impurities को आप कैसे remove कर सकते हैं? So for those purpose we have the process of sedimentation, decantation and filtration। ये methods हैं जिनके through हम insoluble impurities को remove कर सकते हैं from the water। First of all sedimentation, it is a process in which heavy particles, एक ऐसा process जिनमें जो heavy particles या जो impurities हैं water में present, वो उस कंटेनर के बॉटम में सेटल हो जाती हैं ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। दैट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। यानी कि आपने क्या लिया, पानी लिया, उसमें आपने सैंड को स्टिर कर दिया, ऑलराइट, एंड देन आप उस कंटेनर को विच इज अ काइंड ऑफ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, आप उसको थोड़ी देर के लिए क्या कर देंगे, ये विल लिफ्टेड होगा, ठीक है।
व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज आफ्टर 10 मिनट्स कि जितना भी सैंड उसके अंदर प्रेजेंट था वो हैवी होने की वजह से कंटेनर के बॉटम में सेटल हो चुका है, एंड जो वाटर है दैट हैज कम अबव इट. दिस इज नोन एज सेडिमेंटेशन प्रोसेस. नाउ डिकेंटेशन इज द प्रोसेस विच इज फॉलोड बाय सेडिमेंटेशन. मीन्स अब आपको क्या करना है कि वो जो पानी ऊपर आ चुका है उस पानी को बहुत स्लोली आप अदर कंटेनर में पोर कर लेंगे. दिस इज नोन एज डिकेंटेशन. See, it is a process for the separation of mixture. Carefully pouring a solution from a container. Carefully उस solution को pour करना है कंटेनर से, so that जो नीचे settle हो चुका था, that was sediment, उसको आप वही कंटेनर के bottom में छोड़ देंगे. This is known as decantation. Next we have filtration. Filtration एक ऐसा process है in which solid impurities जो है water के अंदर, उसे हम एक filter medium के through remove करते हैं. ठीक है, ये क्या करेगा, वाटर को पास आउट कर देगा लेकिन इम्प्योरिटीज जो है अंदर ही रह जाएंगी. सो दीज वर द मेथड्स ऑफ रिमूवल ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज. नाउ वी हैव रिमूवल ऑफ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज. सो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज को आप सेपरेट करते हैं थ्रू इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इवेपोरेशन. सो यहाँ पे टेक सम वाटर, आपको एक बीकर में पानी लेना है, फिर उसके अंदर आप शुगर या सॉल्ट डिजोल्व करेंगे. देन उसके बाद उस बीकर को एक स्प्रिट लैम्प पे रखना है. Then allow it to boil. इसके बाद आप उसे बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे until जब तक सारा पानी जो बीकर के अंदर है वो इवेपोरेट नहीं हो जाता. आफ्टर इवेपोरेशन व्हाट यू विल सी कि कुछ क्रिस्टल्स आप देखेंगे which are lying in the beaker. These crystals, ये क्रिस्टल्स किसके हैं, शुगर और सॉल्ट के हैं. एंड thus इस तरीके से soluble impurities को आप रिमूव कर सकते हैं from the water by the method of evaporation. नेक्स्ट डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होता है, इम्प्योर वाटर इज टेकन इन द फ्लास्क. इम्प्योर वाटर को एक फ्लास्क में लिया जाएगा एंड इसे हीट किया जाएगा. व्हाट यू विल सी कि ऑन हीटिंग होने से वाटर स्टीम में चेंज हो गया एंड इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड. एंड व्हेन द स्टीम, अब इस स्टीम को जब आप कूल करेंगे एक कंडेंसर के थ्रू पास करके, तो वो सारी स्टीम अगेन लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी एंड जो प्योर वाटर है उसे आप एक कॉनिकल फ्लास्क में कलेक्ट कर सकते हैं. Next, we have the topic that is purification of drinking water. So, as we know that water contains many impurities, right? So, इन impurities को remove करने के लिए, उस water को fit बनाने के लिए, for the purpose of drinking, we need to purify it. So, water purification is a process. Water purification क्या है? एक ऐसा process है in which we remove the undesirable substances from raw water. रॉ वाटर में से जितने भी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस है उन्हें रिमूव कर दिया जाता है सो दैट वो फिट बनाया जा सके फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन. सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स जिसे आप यूज करते हैं वाटर प्योरिफिकेशन के लिए. नंबर 1 इज बॉइलिंग. बॉइलिंग सबसे इजीएस्ट मेथड है वाटर प्योरीफाई करने का, बिकॉज इसके थ्रू जितने भी डिजीज कॉजिंग जर्म्स थे वाटर के अंदर दे ऑल गेट डाई. एंड इसीलिए इट इज रिकमेंडेड कि हमें ड्रिंकिंग वाटर को बॉईल करना चाहिए फॉर अ फ्यू मिनट्स बिफोर ड्रिंकिंग. नेक्स्ट फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन आपका वन ऑफ द पॉपुलर वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस है. ठीक है, इसमें बेनिफिट होते हैं कि एक तो आपको इमीडिएट एक्सेस मिलता है टू द ड्रिंकिंग वाटर विदाउट एडिंग अनप्लेजेंट टेस्ट. ना तो इसमें अनप्लेजेंट टेस्ट बढ़ता, मतलब ऐड नहीं होता वाटर में, टेस्ट वैसे ही रहेगा. एंड आपको जो पानी मिलता है वो बिल्कुल प्योर मिलता है. बट जो इसका मेजर डिसएडवांटेज है वो क्या है कि इट कांट फिल्टर वायरसेस. इस मेथड में वायरसेस फिल्टर नहीं होते हैं. देन वी हैव केमिकल ट्रीटमेंट. केमिकल ट्रीटमेंट्स में हम केमिकल्स का यूज करते हैं वाटर प्योरीफाई करने के लिए, लाइक वी यूज क्लोरीन, आयोडीन. ठीक है, एंड इस ट्रीटमेंट की जो इफेक्टिवनेस है स्टूडेंट्स, दैट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ वाटर. डिपेंड करता है उस वाटर का टेम्परेचर क्या है, टर्बिडिटी क्या है, केमिकल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ये कितने टाइम के लिए आप उसे ट्रीट कर रहे हो. एंड जो मेजर ड्रॉबैक है क्लोरीन एंड आयोडीन ट्रीटमेंट का, दैट इज व्हाट, चेंज इन फ्लेवर, यानी कि इससे पानी का फ्लेवर चेंज हो जाता है. ये डिसएडवांटेज है इस केमिकल ट्रीटमेंट्स का. नेक्स्ट इज अल्ट्रावायलेट प्योरिफिकेशन. अल्ट्रावायलेट लाइट जो है स्टूडेंट, वो माइक्रोब्स को इनएक्टिवेट कर देती है विच आर प्रेजेंट इन द वाटर, एंड देन इट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रिप्रोड्यूसिंग. एंड वो माइक्रोब्स आगे रिप्रोड्यूस भी ना करे, इसको भी ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है. सो बेसिकली ये जो मेथड है वो इफेक्टिव है अगेंस्ट ऑल द सोर्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग वायरस. ठीक है, इससे आपका जो वाटर का फ्लेवर है वो भी रिस्टोर रहता है, चेंज नहीं होता. लेकिन
केवल एक डिसएडवांटेज है, दैट इट इज यूज्ड फॉर लेस टर्बिड वाटर। लेस टर्बिड वाटर के लिए हम इसका यूज करते हैं। अदर मेथड्स, अदर भी कुछ प्योरिफिकेशन मेथड्स है, जैसे कि रिवर्स ऑस्मोसिस, यूजिंग एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, वाटर डीआयोनाइजर्स एक्सेट्रा। ऑलराइट, चलो, now let us recall it. Number 1, air is present everywhere. Yes. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या है? मोस्ट अबंडेंट गैसेस हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, राइट? 78% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्रीदिंग के लिए, फॉर स्टेइंग अलाइव। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज करते हैं टू मेक देयर फूड। एंड जो ओजोन लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की, इट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल हमारे अर्थ को सेव करने के लिए फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन। देन द ब्लैंकेट ऑफ एयर, ठीक है, एयर का ब्लैंकेट जो हमारे अर्थ के सराउंडिंग है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की जो फर्स्ट लेयर है, दैट इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। एंड मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर को ऑफन टुगेदर व्हाट वी कॉल आयनोस्फेयर। एयर की क्या प्रॉपर्टीज थी कि इट हैज वेट, इट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड इट आल्सो एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. So that's all for the chapter. It's completed. We have discussed about the air, water, the different features of them and the various things which are related to them. I hope you must have understood the importance of air and water. Now let's meet you very soon in the next session, and then keep going well, and thanks to all.